آج اس کلمے میں جو بنیادی پیغام ہے ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے انسان بنا۔ مسیح کی پیاس، مسیح کی یہاں پر تلخی، نکاہت، بے چینی یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ کامل انسان بنا۔ تو میں پیاسا ہوں، یہ اس کی محبت کی انتہا ہے کہ وہ جو خود پانیوں کو بناتا ہے، کہ وہاں پر تو اسے پانی کی پیاس ہی لگی ہوئی ہے اور وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں جو پانیوں کا خالق ہوں، میں جو سمندروں کا مالک ہوں، میں جو ہر چیز کا بنانے والا ہوں، میں تمہاری محبت میں پانی کا پیاسا۔ آج ہم مسیح خداوند کا صلیب پر جو 5واں کلمہ ہے وہ ہم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل 19واں باب 28ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل 19واں باب اور 28ویں آیت میں مسیح خداوند کا وہ کلمہ جو جسم کے دکھ کو ظاہر کرتا ہے، اسے جسمانی دکھ کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ تاکہ نوشتہ پورا ہو اور کہا میں پیاسا ہوں۔ آج اس کلمے میں جو بنیادی پیغام ہے ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے انسان بنا۔ مسیح کی پیاس، مسیح کی یہاں پر تلخی، نکاہت، بے چینی یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ کامل انسان بنا۔ جب ہم یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں ہی پڑھتے ہیں یسایہ کی کتاب نامے باب کے اندر، تو وہاں پر پہلے ہی پیشن گوئی ہو چکی تھی۔ دیکھو ایک لڑکا تولد ہوا اور ایک بیٹا ہم کو بخشا گیا۔ اب یہ جو لڑکا تولد ہوا یہ اس کی بشریت ہے، اس کا انسان بننا ہے، لیکن آگے ہی لکھا ہے اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ تیسرا کلمہ اس کی الوہیت کو ثابت کرتا ہے، اس الوہیت کے نام کی قدرت کو ثابت کرتا ہے کہ اب وہ جلال میں داخل ہونے والا ہے، اس لیے وہ اپنی زمینی ماں کی ذمہ داری اپنے شاگرد کو دیتا ہے۔ دوسرا کلمہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ بھی یسوع کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے، الوہیت کو ثابت کرتا ہے کہ ایک وہ ڈاکو جو جہنم کی تیاری کیے ہوئے ہے، جب اس نے یسوع کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور یسوع کو اپنا بادشاہ مان لیا، تو یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ اس کی الوہیت ہے۔ لیکن چوتھا اور 5واں کلمہ اس کی بشریت، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم سب کے گناہ یسوع مسیح پر لا دیے گئے، ہم سب کی بدکاری اس پر لا دی گئی، اور جب وہ ہمارے لیے باپ کی عدالت میں گناہگار بن چکا ہے، باپ کی عدالت میں وہ گناہ بن چکا ہے، باپ کی عدالت میں ہم سب کی بدکاریاں اس پر لا دی گئی اور وہ ہمارے لیے گناہگار اور گناہ بن گیا، تو وہ چلا اٹھا کہ اے میرے باپ، اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح 5واں کلمہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یسوع ہمارے لیے انسان بنا، تو یہ اس کی وہ محبت ہے۔ ورنہ یسوع تو وہ ہے، پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو بحر کلزم کو تقسیم کرنے والا یسوع ناصری ہے، دریائے یردن کو تقسیم کرنے والا یسوع ناصری ہے، اور پانیوں
पर चलने की ताकत देने वाला पतरस को यीशु नासरी है, और पानी को हुक्म देता है तो वो थम जाता है। और वहां पर उन्होंने कहा भी, अरे खुदा के सिवा पानी को कोई डांट नहीं सकता, हवा को कोई डांट नहीं सकता। वो साबित कर रहा था, अरे पानियों पर मेरा इख्तियार है, हवाओं पर मेरा इख्तियार है, दरियाओं पर मेरा इख्तियार है, पहाड़ों पर मेरा इख्तियार है। ये आसमान और जमीन खड़े हैं तो मेरे इख्तियार में खड़े हैं, लेकिन ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरा प्यार है कि तुम्हारे लिए मैं बेबस हो गया। आज वही इंसान जिसके नथनों में मैंने खुद जिंदगी का दम फूका, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया, जिसको मट्टी से लिया, तराशा और उसको जिंदगी दी, आज वही इंसान मेरे चेहरे पर थूक रहा है, आज वही मुझे थप्पड़ मार रहा है, आज वही मेरी दाढ़ी नोच रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये सब तेरी मोहब्बत में है। तो ये कलमा मैं प्यासा हूं, ये साबित करता है कि यीशु की हमसे मोहब्बत है, कि वो जो समुद्रों का भी खुदा है, वो जो पानियों का भी तख्लीककार है। हाइड्रोजन के 2 हिस्से और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा हो तो पानी बनता है, लेकिन अगर खुदाए कादर मुतलिक वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम खारिज करते हैं, क्या बोला, हाइड्रोजन, और इन करते हैं ऑक्सीजन, लेकिन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खुदा की तख्लीक है। वो जो लिखा है पैदाइश की किताब के अंदर कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। ये जो लफ्ज जुम्बिश है, इसके लिए जो लफ्ज इब्रानी में है वो है कबोत, और उसका मतलब है सीने का अमल। यानी खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश कर रही थी, इसका मतलब है खुदा की रूह जो है वो तख्लीक कर रही थी, खुदा का सांस तख्लीक कर रहा था। और मुर्गी, ये जो सीने का अमल होता है, मुर्गियां की कभी पाली है किसी ने, कभी रखी है? जब मुर्गी अंडों पर बैठती है तो 21 दिन तक वो मुर्गी अंडों को हरारत देती है, अपनी तपश देती है, और उसके दिल में होता है कि इन 21 दिनों के अंदर मैं इन अंडों को अपनी हरारत दूं, इन अंडों को अपनी ताकत दूं, इन अंडों को अपनी शक्ल दूं, इन अंडों के अंदर से मेरे जैसे मुर्गी के बच्चे पैदा हो, इन मुर्गा अंडों से जिंदगी पैदा हो। और जब वो अंडों पर बैठी होती है, अगर 4 अंडे हैं तो चारों अंडों को प्रॉपर मुर्गी हरारत देती है, कोई फेवरेटिज्म नहीं करती। लेकिन इस अमल में, इस सेने के अमल में, जो अंडे अंदर से टूटते हैं उनके अंदर से जिंदा चूजे पैदा होते हैं, और जो अंडे अंदर से नहीं टूटते वो दुकानों में बिकते और खाए जाते हैं और जाया हो जाते हैं। अब यही अमल रूह कुद्स कर रहा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश कर रही, और यीशु ने खुद कहा मैं जब हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं, और उसने कहा जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यानी रूह कुद्स तुम्हारे अंदर से जिंदगी पैदा करेगा, और जब रूह कुद्स नाज़िल होता है, रूह कुद्स की कुदरत आती है, वो तो सब पर आती है। पूरी बनी नौ इंसान को वो निजात देना चाहता, पूरी बनी नौ इंसान पर वो जुम्बिश कर रहा है, हरारत दे रहा है, बरकत दे रहा है। यीशु उनके लिए आया, सलीब पर जान दी, अपना फिदिया दिया, थप्पड़ खाए, कोरों की मार खाई, अपना लहू दिया। लेकिन जो रूह कुद्स के इस काम में, यीशु मसीह की इस बख्शिश में दिल से इसे कबूल करेगा वो जिंदगी पाएगा। लेकिन जो दिल से कबूल नहीं करेगा, जो अपने अंदर बंद रखेंगे, लिखा ना वो तुम्हारे दिल के दरवाजों पर खड़ा हुआ खटखटाता है। अगर कोई आवाज सुनकर कुंडी खोले, तोड़ के अंदर नहीं आएगा, इसका मतलब कुंडी अंदर से लगी हुई है। तो जब हम उसको दिल से कबूल करते हैं तो फिर उसी मुर्गी की तरह जो अंडे अंदर से टूटते हैं उनकी जिंदगी पैदा होती है, तो हमारे अंदर भी जिंदगी आएगी। ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि जो ऑक्सीजन है, अगर खुदा 5 सेकंड के लिए इसे उठा ले, दुनिया से खत्म कर दे जिंदगी को, ऑक्सीजन को, यानी जो ऑक्सीजन दुनिया में है अगर 5 सेकंड के लिए सिर्फ खत्म हो जाए
तो ये पूरी दुनिया बिगड़ जाएगी। जितनी भी लोहे की चीजें हैं पूरी दुनिया से उखड़ कर एक जगह पर वेल्ड होना शुरू हो जाएंगी। ये जो छोटी छोटी छिपकलियां हैं ये इतनी बड़ी हो जाएंगी कि हमारी अकल से बाहर। ये जो लाल बेग है निकाया इनको भैणा साड़ियां डरदियां ते जे एडे वड्डे हो जाएंगे, साडे नक एडे एडे वड्डे हो जाएंगे, सानू ते चंगे भले होंदे फिर भी कहंदे जी नक इहदा बड़ा वड्डा है। उन्होंने भी कह रहे होंगे कि केडे एडे वड्डियां अखां हो जाएंगे, सारी कायनात बिगड़ जाएगी, हमारी छत्तें भी उखड़ जाएंगी, इनके अंदर जो सरिया है ये उखड़ जाएगा, वेल्ड हो जाएगा, हर लोहे की चीज जो है पहाड़ की तरह वेल्ड हो जाएगी। इसका मतलब है हमारी छत्तों को ये लोहे के सरिये ने नहीं, अरे गार्डर ने नहीं, अरे TRN ने नहीं, अरे टाइलों ने नहीं, हमारी छत्तों को भी पाक रूह ने संभाला हुआ है। ये खुदावंद मेरे और आपके लिए इंसान बन गया और सलीब पर प्यासा है। कई लोग रूहानी मानी निकालते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं यीशु पानी का प्यासा नहीं, वो तो हमारी रूहों का प्यासा है। और भाई रूहां का प्यासा तो नजर आउंड क्या आसमान छड़ के आ गया, लेकिन वहां पर तो उसे पानी की प्यासी लगी हुई है और वो साबित कर रहा है कि मैं जो पानियों का खालिक हूं, मैं जो समुद्रों का मालिक हूं, मैं जो हर चीज का बनाने वाला हूं, मैं तुम्हारी मोहब्बत में पानी का प्यासा। और अगली बात कहा इसलिए ताकि नविश्ता पूरा हो। हालेलुया। यीशु ने ये इसलिए कहा ताकि नविश्ता पूरा हो। नविश्ते का मतलब है स्क्रिप्चर ऑफ गॉड और इसका मतलब है खुदा का कलाम, इसका मतलब है खुदा का इल्हाम, खुदा का लिखा हुआ कलाम। ये इसलिए कहा ताकि नविश्ता पूरा हो, यानी यीशु मसीह वो मुजस्सम कलाम है। इसीलिए तो लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम ही मुजस्सम हुआ, यानी वो कलाम जो था उसने जिस्म ले लिया। कलाम का लफ्जी मतलब है लफ्ज, यानी मेरे अंदर से निकलता है, मैं बोलता हूं तो ये जो मेरे अंदर से कलाम यानी जो बातें निकल रही हैं ये मैं बोल रहा हूं। लेकिन ये जो नविश्ता है इसका मतलब है खुदा का बोल, खुदा का कलाम। कितनी बड़ी हस्ती है यीशु नासरी कि उसको प्यास भी लगी तो कलाम पूरा हुआ, उसको कोड़े लगाए गए कलाम पूरा हुआ। हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया और लंबी लंबी रिगारियां बनाई, उसके चेहरे पर थूका गया, कलाम पूरा हुआ। उसकी सूरत बिगड़ गई, लिखा है यशायाह की किताब 53 बाब में। यीशु को सलीब चढ़ाया गया, कलाम पूरा हुआ। वो चरनी के अंदर पैदा हुआ, कलाम पूरा हुआ। मुकद्दसा मरियम हामला हुई, कलाम पूरा हुआ। यीशु ने अंधों की आंखें खोली, बहरों के कान खोले, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया। वहां लिखा है जब खुदा आएगा तो अंधों की आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कान खोले जाएंगे, लंगड़े हल की मानक चौकड़ियां बनेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी। जब वो मौजज़ात कर रहा था तो कलाम पूरा हो रहा था। जब गोरियों को पाक साफ कर रहा था कलाम पूरा हो रहा था। जब मुर्दे जिंदा हो रहे थे कलाम पूरा हो रहा था, क्योंकि वो मुजस्सम कलाम है, वो सरासर खुदा का कलाम है। इसलिए तो उसे कलमातुल अल्लाह भी कहा गया कि अल्लाह का कलमा। अगर मेरे अंदर से ये कलाम खत्म हो जाए, वो इसलिए कहते हैं ना कि जब तक यानी मैं जिंदा हूं तो बोल सकता हूं, लेकिन अगर मर गया तो फिर नहीं बोल सकता। लेकिन बंदा जिंदा है और बह जाए उन्हें बोलियां को ते मर जाए ते को गल ही कर ला, तुम ते को गल भी नहीं की थी ते जिंदा को बोलने नहीं देना। वो किसी शायर ने भी कहा है ना कि ये जो रो रहे हैं मेरे मरने पर, ये जो रो रहे हैं मेरे मरने पर, अगर अभी उठ के बैठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। ये जीने भी नहीं देने दे, जिंदा नु जिंदा नहीं रहने देंगे। ते मर जाए ते फिर कदर तू इंज कीता तू बोलदा नहीं। अरे जिंदा की कदर करो,
تو اگر کوئی مر جائے تو وہ نہیں بولتا، اس کا مطلب ہے خدا سراسر کلام ہے، اور وہ سراسر کلام میرے یسوع کے اندر ایک جسم کی صورت لیا اور مقدسہ مریم کے بطن اطہر میں آیا اور وہ اس کی قدرت سے جسم لیا اور میری طرح کا ایک انسان بنا۔ ہاں انسان بنا لیکن کامل میری طرح کا نہیں تھا، گناہ سے مبرہ تھا، شکل میں میری طرح۔ اور اس لیے تو وہ کہتے تھے، جب وہ کہتا تھا جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو وہ کہتے تھے یہ کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے۔ وہ دیکھتے تھے یہ گوشت پوش کا انسان ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ خداوند ثابت کرتا رہا اگر میں تمہاری محبت میں انسان بنا ہوں، ارے تمہاری محبت میں انسان بنا ہوں، ارے جو پیاس لگی ہوئی ہے یہ تمہاری محبت میں ہے، یہ جو پیاس لگی ہے، نکاہت ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرا خون بہ رہا ہے اور میرے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ہے، اور یہ جو درد ہے یہ درد تمہاری وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، تمہاری وجہ سے یہ برداشت کر رہا ہوں اور تمہارے لیے انسان بن کر آیا ہوں۔ ارے میرے پاس آ جاؤ، اگر بوجھ کے دبے ہو، ارے تھکے ماندے ہو، آنسوں سے ہو، پریشان ہو، فکر مند ہو، مایوس ہو، بیمار ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، کیونکہ میں تمہیں آرام دینے آیا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے تم سے پیار کیا ہے، اور تمہاری محبت میں بے بس اور لاوارث نظر آتا ہوں، لیکن ہوں میں قادر مطلق، تو میں پیاسا ہوں۔ یہ اس کی محبت کی انتہا ہے کہ وہ جو خود پانیوں کو بناتا ہے، خود پانیوں کا خالق ہے۔ یعنی آپ غور کریں، جب بحر کلزم تقسیم ہوا، اس معجزے کو کبھی بیٹھ کے سوچے کہ بحر کلزم بہت بڑا سمندر ہے، اب آگے بحر کلزم ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے بھی مشکل پیچھے بھی مشکل ہے، لیکن وہاں پر اسرائیلی بھول گئے، کیونکہ اس نے کہا میں تیرا ہراول اور میں تیرا چنڈاول ہوں، مشکل تیرے آگے ہو تب بھی میں تجھے بچانے کی طاقت رکھتا ہوں، مصیبت تیرے پیچھے ہو تب بھی تجھے بچانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اور وہاں پر ہراول اور چنڈاول عملی طور پر ثابت کیا۔ فرعون کی فوجوں کو روکا کس سے؟ آگ سے۔ فرعون کی فوجیں پیچھا کر رہی ہیں اور ترس رہی ہیں کہ اسرائیلیوں کو مار دے گی، لیکن خدا ثابت کر رہا ہے ارے میں اسرائیلیوں کا خدا ہوں، قتل کرنا تو دور، ان کو ہاتھ بھی نہیں تم لگا سکتے۔ اور وہ فرعون جو انہیں مار دینا چاہتا، جب سب فوجیں ڈوب گئی، میں اس بات کو بتاؤں گا، تو پھر کیونکہ وہ جو اس کی بیوی تھی، اس نے اسے کہا تھا کہ اگر تیرا خدا زندہ ہے نا، ملک دیوتا زندہ ہے، تیرے نیلم خدا، پانیوں کے خدا زندہ ہیں، تو موسیٰ کو قتل کر کے آنا، تلوار پر اس کا خون لانا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ موسیٰ کا خدا زندہ خدا ہے۔ لیکن جب وہ واپس آیا، آپ موسیٰ کی فلم دیکھیں تو بڑا مایوس ہے، اور وہ تلوار جب لے کر اندر آتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے لا موسیٰ کا خون تلوار پر دکھا، اور وہ تلوار ایسے پھینکتا ہے اور کہتا ہے موسیٰ کا خدا خدا ہے، موسیٰ کا خدا خدا ہے۔ فرعون کی فوجوں کو آگ سے روکا اور سمندر کے اندر ایک روڈ تخلیق ہونے لگا۔ NLC نے روڈ نہیں بنایا، حالانکہ NLC ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، پر پاکستان چاہ کے وہ بھی اننے سست ہو جاندے ہیں، کیونکہ اگے بے ایمان نے نا اے پول جڑا ساڈا ایتھے 7 سال بعد بنیا، ہلے بھی بنگا وا، لیکن خدا نے کہا میں اپنے لوگوں کے لیے سمندر کے اندر سڑک بناؤں گا۔ فرعون دی فوجاں نو اگ نہ روکیا، جویں بورڈ نہیں لگا ہوندا، خبردار آگے سڑک زر تعمیر ہے۔ فرعون دی فوجاں نو کہا خبردار اگے سڑک بنن دی، میرے لوکاں نے اگے گئے تھے، اگے سڑک بنن دی، اور ایک ہی رات سمندر چ سڑک بن گئی، اور فرعون کی فوجیں آگ سے رکی ہوئی ہیں اور سمندر کے اندر راستے بن رہے ہیں۔ ارے تیرا خدا تو سمندر کو بھی راستے بنا دیتا ہے، تیرا خدا بیابانوں میں 6 لاکھ لوگوں کو، نہ وہاں تندور لگایا گیا، نہ وہاں روٹی پکائی گئی، نہ وہاں ہانڈی چڑھائی گئی، لیکن 6 لاکھ لوگ کھا رہے تھے۔ ارے ان کے کپڑے بھی خدا وہاں مہیا کر رہا تھا، ارے ان کے لیے دوائیاں بھی خداوند مہیا کر رہا تھا۔ دوائی سے مراد کہ وہ بیمار ہی نہیں ہوئے 40 سال۔ ثابت کر رہا تھا کہ میں خدا ہوں، لیکن یہ خدا اگر صلیب پر انسان بن کے مر رہا ہو اور کہہ رہا ہو میں پیاسا ہوں، تو کتنا کمزور خدا ہے۔ کس نے کر دیا کمزور؟ ہماری محبت نے،
किसने? सलीब पर इसे लटकाया, हमारी मोहब्बत ने। अरे किसी आलम ने कहा वो कीलों से जकड़ा हुआ नहीं था, अरे वो हमारी मोहब्बत से बंधा हुआ था। इसने उसे इतना कमजोर कर दिया, मोहब्बत ने। इसलिए मेरे अजीजों उसकी मोहब्बत ना भूलेंगे। जब इस्राएली गुजर गए तो आग हट गई, फिरौन ने हुक्म दिया पकड़ो इनको, लेकिन जो ही वो अंदर गए तो पानी साकन हो गया और वो मर कर लुट के खत्म। यही मौजज़ा दहरियों की एक इलाके में सेमिनरी के अंदर प्रोफेसर साहब सुना रहे थे कि किस तरह बहरे कुलसम तकसीम हुआ। तो उन्होंने क्या जी, दहरिया प्रोफेसर था, ये मौजज़ा सुना रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये तो कोई मौजज़ा है ही नहीं। उन दिनों में जब इसराइली आए तो पानी गोडे गोडे सी, इंग्लिश की किताब है, तो ओ गोडे गोडे पानी सी, तो गोडे गोडे पानी चो निकल गए। तो उसी जगह पर एक मसीही बैठा हुआ था, रिचर्ड ओब्रायन का शागिर्द था। उन्हें कहा सर ये जड़ी तुसी गल कीती है तो फिर उस मौजज़े नूं भी वड्डा है जिहड़ा बाइबल च लिखिया। उन्हें कहा ओके जी। उन्हें कहा गोडे गोडे पानी च इसराइली गुजर गए और गोडे गोडे पानी च इस फिरौन दी फौजां मर गईयां, क्योंकि गोडे गोडे पानी च मार नहीं सकदियां। जे गोडे गोडे पानी च खुदा ने फिरौन दी फौजां नूं मारता है तो बहुत बड़ा मौजज़ा। अरे हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा है। सलीब पर वो इसलिए लटका हुआ था, हमसे मोहब्बत करता है। ये रियल लव है, ये सच्चा प्यार है, ये सच्ची मोहब्बत है। इसलिए कोई दुनिया की मोहब्बत में ना फंसे। ये जो आजकल लड़के लड़कियां, ये मोहब्बत नहीं, ये शहवत परस्ती है। अपने माँ बाप को धोखा ना दे। मुंडे ते है ही इंज दे ने, कुड़ियां नूं मैं कहना अपने माँ बाप को धोखा ना दो, अपनी आंखों में पाकीज़गी पैदा करो। अरे तेरा बाप तेरे लिए मेहनत करता है, इसलिए उस इज्जत को कभी भी अपने पांव तले ना रोंदना। जब कोई भी बच्ची किसी लड़के को मैसेज करती है या उससे तल्लक रखती है, वो अपने बाप की जलालत का बायस है। इसलिए तौबा कीजिए। और सच्ची मोहब्बत जो यस्सु हमसे करता है, सच्चा प्यार जो यस्सु हमसे करता है, अरे उससे मोहब्बत करे। इसलिए तो पलूस अपने खतूत में बार बार लिखता है अपने खुदावंद यस्सु मसीह के वसीले से। अपना कौन है हमारा? सिर्फ यस्सु। रिश्तेदार छोड़ जाएं, दोस्त छोड़ जाएं, यस्सु कभी नहीं छोड़ेगा। ये बात मैंने कई दफा सुनाई, दिल कर रहा है वो मैंने आपको सुनाया था पिछले दिनों में एक वाकया C.S. लुईस का। तो C.S. लुईस कहता है कि जब यस्सु सलीब पर ऐसे हाथ फैले हुए जान दे रहा था, काके बैठा जान दी, हाथ ऐसे फैले हुए थे, तो वहां पर गवाही ये थी कि सबकी बाहें बंद हो जाएं, रिश्तेदारों की बाहें बंद हो जाएं, दोस्तों की बाहें बंद हो जाएं, सबकी बाहें बंद हो जाएं, यस्सु की बाहें कभी बंद नहीं होंगी। जब भी आओगे, इसलिए तो उसने कहा ऐ बोझ के दबे और थके मंदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो आए अपने यस्सु के पास, आए अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं संजीदगी से कहना चाहता हूं, आए दुनिया की झूठी मोहब्बत में ना पड़े, शहवत परस्ती में ना पड़े। आए यस्सु हमसे सच्ची मोहब्बत करता है। आए यस्सु की सच्ची मोहब्बत का शुक्रिया अदा कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए। नौजवान बेटी बेटियों से मैं कहना चाहता हूं, तौबा कीजिए। अपने माँ बाप की इज्जत को मत रोंदे, अपना किरदार पाक रखें, अपना चाल चलन पाक रखें और शैतान को कुचलें। आए दुआ कीजिए। आए मेरे अजीजों, जो बहन भाई चाहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, कोई भी आपका मकसद हो सकता है, आप खड़े हो सकते हैं। अगर आप चर्च में हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, गुनाह का इकरार करना चाहते, गलतियों को मानना चाहते, बरकत पाना चाहते, आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं, आप भी अपने आप को पेश कर दीजिए खुदावंद के सामने। आए खुदावंद के सामने अपने आप को रख दें और कहें खुदावंद तेरा रूह खुश मुझ पर नाज़िल हो, तेरी बरकत आए। यस्सु की मोहब्बत का शुक्रिया अदा कीजिए, यस्सु का शुक्रिया अदा करें। हालेलुया। हम इस गीत को, ये अवैध सादक साहब का गाया हुआ गीत है, हम उस तरह तो नहीं गा सकते, लेकिन प्रस्तुत करेंगे, दोबारा इसको गाएंगे।
दुख जीवन से भाग जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि जब मसीह आ जाता है तो हम पे आजमाइश नहीं आती, या पर उसका मतलब दुख का जो असर है वो नहीं रहेगा। यानी अयूब साबर 11,000 जानवर मरे, 7 बेटे मरे, 3 बेटियां मरी, अगर उस दुख का असर उसकी जिंदगी पर हो जाता तो वो कभी ना कहता खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। उसकी बीवी पर असर हुआ दुख का तो उसने कहा खुदा पर लानत कर दे और मर जा। जब दुख आता है हम जादूगरों के पास जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम दुख की उस सिचुएशन के अंदर यीशु के साथ वफादार नहीं रहे। देता शिफा यीशु यहाँ, सब गाएंगे, देता शिफा यीशु यहाँ, छू कर जुबान से बोल कर, देता शिफा यीशु यहाँ, छू कर जुबान से बोल कर, फिर रोगी न कोई रहता है, फिर रोगी न कोई रहता है, जब यीशु जीवन में आता है, जब यीशु जीवन में आता है, दुख जीवन से भाग जाता है, दुख जीवन से भाग जाता है। मुझ पर फजल की बारिशें होने, हालेलुया, मुझ पर फजल की बारिशें होने लगी हैं जोर से, सूखा भी हरा हो जाता है, सूखा भी हरा, जब यीशु जीवन में आता है, जब यीशु जीवन में आता है, दुख जीवन से भाग जाता है, दुख जीवन। जीसस, आए यीशु का लहू को मांगे। बीमारी चाहे रूह की हो, बीमारी चाहे बदन की हो, यीशु के लहू से मौजसात होते हैं, यीशु के लहू से शिफा आती है, यीशु के लहू से मौजसात होते हैं। खुदावन जो हम इस मीडिया के जरिए देख रहे हैं वो किसी हिस्से में भी है, खुदा का पाक रूह उन पर नाज़िल हो और इन दफा को हर तरह की नापाक बीमारियां चाहे रूह की हो चाहे बदन की हो, यीशु के नाम में शिफा। बीमारी छोड़ दे बदनों को। जो चर्च में है यीशु के लहू की कुदरत से दुआ कीजिए। अपनी बीमारी की जगह पर आप अपना हाथ रख सकते हैं। आपकी जो भी बीमारी है आइए उसका नाम लेकर दुआ मांगे। यीशु के लहू से अभी खुदावंद की कुदरत से मौजसात हुए। हालेलुया। यीशु तेरा यीशु तेरा यीशु तेरा यीशु तेरा तेरी मिन्नत करता हूं मसीह के नाम में ये दुआ मांग। आमीन आमीन। सब तशरीफ रखें।